All right, hello everyone, and today we are here with V Gaurav, and V Gaurav has made it to ISI. So, firstly, many congratulations. We are very happy, with your achievement. And so, Gaurav, let me start from the beginning. We were just talking that this has been a long journey for you, and like you were saying, this is like this is a dream come true. This is a big, thing for you. So tell me first, how did this start? How did this thing of, that I want to go into a place like ISI, and talk us through your background also, which background do you come from? Yeah, so ma'am, actually, if I talk about my background, it will get so long. So let me start from my college, first year college days. So actually, what happened was actually my first preference to pursue economics was DU, Okay. uh, but due to certain reasons which was not under my control, I got into BHU. And from the very first day, I felt like I'm inferior to those who got into DU and Saint Xavier's, and I have to do something which they are doing so that I can be equal to them. That was a mindset when I was at absolutely I was 19. So these are the feelings which we have usually when we see our friends going to big institutions and we are not going into that much reputed institution. So going into BHU, people were happy. Some people were very happy that I got into BHU, but I wasn't really happy. For whole 3 years, there wasn't a single day when I was happy in BHU. That I'm in BHU. I'm in a very good college. I was feeling like I have to do something better because I haven't really achieved something really special. So दिस वाज काइंड ऑफ मतलब ये आग थी मतलब एक तरह से कि कहीं अच्छी जगह जाना है मतलब और फिर जब तो देन गौरव, आपको थोड़ा कट कर रही हूँ कि आपने बोला कि दिस वाज, ये एक डिजायर था, कि एक आग थी कि मेरे को भी करना है। तो एक हर एक चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है जैसे आपने लिया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं क्यों नहीं डीयू जा सकता, या मैं क्यों नहीं एक बेस्ट कॉलेज जा सकता। वर्सेस एक होता है कि ओ मेरे से तो हुआ नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत की फिर भी मेरे से तो इतना ही हुआ, मे बी आई कांट, मे बी मेरे से ये नहीं होगा। So, how did you make sure that you stayed on the positive side and not go on the negative side कि मेरी बस की नहीं है, मैं पता नहीं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। इसका बहुत बड़ा रीजन था पीयर प्रेशर बिकॉज माय फ्रेंड्स जो जिनके मैं बराबर मतलब कि बराबर के मार्क्स लाता था स्कूल में, उनको मैंने देखा कि हाँ ये लोग बहुत अच्छी सी जगह जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मुझे अच्छा। ऐसा फील हुआ कि नहीं मेरे में कोई कमी नहीं है, आई हैव दैट पोटेंशियल टू डू समथिंग गुड। बट also the realization था कि because of certain reasons which were not under my control I got less marks in 12th. uh, that was I wasn't able to go into Saint Xavier's or DU. Saint Xavier's के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था, मेरे स्कूल में कोई नहीं जानता था। Nobody knew about Saint Xavier's. I think only Bengali people knew and no Bengali was my friend. So only DU का बोलबाला था, सिर्फ DU Yeah. Saint Stephens, हंसराज, रामजस, SRCC इन्हीं का बोलबाला रहता था। तो इनमें तो मैं नहीं जा पाया, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही था। तो आई हैड टू सेटल फॉर BHU। तो पीयर प्रेशर का कारण ये बहुत ज्यादा था कि हाँ मुझ में पोटेंशियल था, मैंने उन लोगों को देखा, उन लोग मेरे से मैं उनके बराबर मार्क्स ही लाता था स्कूल में, कैसे उन लोग ज्यादा आगे निकल मैं क्यों निकल सकता, तो ये था मेरे अंदर। तो ये कारण था और तो इसी मतलब कारण से फिर स्टार्टिंग आपकी एकदम परफेक्ट नहीं थी। आई नहीं नहीं एक सेटबैक जैसा ही था आपके लिए, एंड उससे हम्म, उभर के कि चलो ये स्टेप मेरा अच्छा नहीं हुआ, बट नेक्स्ट स्टेप में मेरे को पूरी जान लगानी है। तो अब हम्म, वही एटीट्यूड था आपका कि अब मेरे को हम्म, पूरी जान लगा देनी है इसमें। तो हम्म। देन व्हाट हैपेंड? मैम देन एक्चुअली कोविड हैपेंड और after COVID happened, so we had to face a financial setback also. So that was the reason I wasn't able to afford a coaching for ISI. So I decided that okay, I'll do self study. Self study से भी हो सकता है, let's try. So I started doing self study for this entrance exam. So I completed all the books. मैंने Varian, Fisher and एक और कोई बुक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मुझे याद नहीं आ रही उसकी नाम थी।
माइक्रो की फील्ड ऐसी, विनायक। हाँ पिंडाक, यस आई आल्सो हम्म, कंप्लीटेड दैट। हम्म, और भी एक दो बुक मैंने और देखी थी, थोड़ी थोड़ी वो भी कंप्लीट की थी। तो मैंने सारे बुक्स कंप्लीट कर डाली। फिर मैंने देखा कि फिर भी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के थे, जो अच्छे लेवल क्वेश्चन थे आईएसआई डीएससी के, वो नहीं बनते थे। तो हम्म, आई रियलाइज दैट इसके लिए कुछ अलग गाइडेंस चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, उसे बुक से नहीं आ सकती है इसकी गाइडेंस से। तो मैं यूट्यूब से भी थोड़े थोड़े जो फ्री में अवेलेबल कंटेंट हम्म, है हम्म, बाय बाय कोचिंग्स लाइक योर्स एंड अदर्स, मैं वो देखा करता था। तो मुझे किसी की टीचिंग पसंद नहीं कि संकित संकित सर के अलावा, मुझे आई ओनली लाइक संकित सर। मुझे मतलब इन्हीं की टीचिंग समझ आती थी, मतलब ये जो पढ़ा रहे थे वही समझ आता था, मुझे वही अच्छे लगते थे। बट हम्म, स्टिल आई कुडंट अफोर्ड इट, सो all the free content I consumed, and then keep going, kept going. So, and along with that, in COVID time, I also started doing IITM, BS from IITM, BS in data science from IITM, because as a backup, because the degree I was pursuing from BHU was not were not making me employable. So as a backup, I did that degree from IITM. I'm still pursuing it. So मैं दोनों पढ़ता था मैं कोविड लॉकडाउन में। और जब फिर जैम हुआ, आईआईटी जैम 2022, उसमें मेरी जो रैंक आई, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं हो सकता करके, आईएसआई वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। तो आई वाज वेरी बहुत निराश हो गया, मैं बहुत उदास हो गया। हम्म, फिर देन माय एल्डर ब्रदर सेड, टेक दैट स्टेप, टेक दैट रिस्क टू गो फॉर कोचिंग। आई वॉच दैट एड ऑफ बूस्टर कोर्स इन 2022। तो माय ब्रदर सेड, एक बार ट्राई करके देख, हो सकता है क्या पता कुछ हो जाए 2 महीने में। तो मैंने फिर बूस्टर कोर्स परचेज किया। फिर उसको परचेज करने के बाद मैंने 2 महीने, मतलब मैं डेली 6 to 7 आवर्स स्टडी करता था बूस्टर वही पोर्टल से, और लाइव क्लास भी करता था। वो मैं डेली करता था। डेली करा तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई, मतलब आई फेल्ट लाइक, मतलब जस्ट बहुत कुछ आ गया करके, मतलब 2 महीने बहुत कुछ सीख गया मैंने। तो फिर मैंने आईएसआई दिया। तो आईएसआई दिया, मुझे लग रहा था कि मैं शायद निकाल लूंगा, कि मैंने सब किया है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि जब मैंने उसका रिजल्ट आया तो नहीं हुआ मेरा। मैंने पीए क्लियर कर लिया, लेकिन पीई भी मेरा बहुत खराब गया था। तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, दैट वाजंट इनफ, 2 months वर नॉट इनफ, इवन आफ्टर स्टडिंग 6 to 7 आवर्स आई हैड टू डू मोर क्वेश्चंस। आई रियलाइज कि मुझे और क्वेश्चंस करने चाहिए थे। तो वो नहीं हुआ, तो उसके बाद तो मैं मतलब काफी इतना डिप्रेस हो गया कि यार, 2 महीने मैंने हर दिन 6 to 7 आवर्स स्टडी की बहुत रिगरसली, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरा आईजीएडीआर और सीयूईटी, सॉरी डीयूईटी, नॉट सीयूईटी, हम्म, डीयूईटी, वर आई फिल्ड दैट फॉर्म, वाज इट वाज पेंडिंग। लेकिन मैंने इतना वो सेटबैक हो गया था कि नहीं, नहीं जाना यार, कोई मतलब नहीं है, जैसे आईएसआई चाहिए था। तो ये वाला फीलिंग आ गई थी। आई वांट ओनली आईएसआई देन। सो वो साल मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास कोई कॉलेज नहीं है। सो सीयूईटी फॉर्म वाज स्टिल एक्टिव, मतलब हाँ, दैट सीयूईटी तो फॉर्म बहुत वाजंट क्लोज। बहुत लेट हुआ था ना शायद इस साल। Yes, DUT and CUT both were late, but CUT form filling was also late, and हम्म, DUT closed very soon. So CUT form was going on, so I thought कि यार कुछ तो कोई तो कॉलेज लेके चलना पड़ेगा, बिना कॉलेज से कैसे रहूंगा, क्योंकि because drop taking drop wasn't in my mind that time. I thought, I have to take some college, good college, to stay 1 year and prepare for ISI. So I thought, apart from economics, I have interest only in uh, computer science. So I started preparing for CUET, computer applications and IT paper. Uh, अच्छा, for 2 months I prepare for that। और मैंने कंप्यूटर पढ़ा, और 12th की मैथ्स पढ़ी, जेई लेवल की, जेई मेंस लेवल की पूरी मैंने पढ़ी। और 2 मंथ में मैं फिर वही 6 to 7 आवर्स स्टडी में फिर लग गया, 2 मंथ। तो उसमें फिर जब मैंने एग्जाम दिया सीयूईटी का, तो मेरा फिर जो नंबर है, 319 नंबर आए थे, 319 नंबर आए थे, 319। And that was only less than 7 marks from the topper. The topper was 326 and I was 319. ओके, So I felt like I have that potential to do good things. So फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं इतना अच्छा कर लिया है। और फिर उसके बाद एक, मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा सा फिल्मी टाइप की स्टोरी हो जाएगी, कहते कि ना, आई माय ओनली आइडल एमएस धोनी। और दैट मोमेंट आई फील है ना, आई एम सेटलिंग फॉर अ टीटी जॉब, आई शुड गो फॉर इंडियन टीम। दैट वाज द फीलिंग। आई शुडंट सेटल फॉर लोअर थिंग्स, मतलब मुझे सिर्फ जेएनयू में सेटल नहीं होना चाहिए। जेएनयू बहुत लोग जाते हैं बीएचयू से, ये मैं एक लोअर थिंग के लिए सेटल हो रहा हूँ। मुझे
1 साल देना चाहिए, जैसे कि धोनी ने लिया, MS धोनी ने लिया था पापा से हमने परमिशन लेके, जो 1 साल लिया था कि मुझे 1 साल दे दीजिए। तो वही सेम चीज मैंने घर वालों को बोली कि 1 साल दे दो, मैं कर दूंगा, ऐसे कर लूंगा मैं करके। आई आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव दैट बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार ड्रॉप मत ले, ड्रॉप लो को, मैं ड्रॉप लेके मैंने बहुत लोग को देखा है, वो कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं, एकदम वो चिल्ड हो जाते हैं ड्रॉप ईयर में, पढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं बोला कि नहीं, आई हैव दैट बिलीफ इन माई सेल्फ, एंड मैं, जो लोग देखेंगे ये वीडियो, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो सब सबकी आ जाएगी, अगर आप सही से क्लास करोगे सबकी आ जाएगी। बट द की टू क्रैकिंग दैट एग्जाम एट लास्ट इज दैट बिलीफ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यही सेम डायलॉग बोला कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं कर सकता हूँ, और मैं ड्रॉप लूंगा, और मैं 1 साल दूंगा अपने आप को, जस्ट लाइक माई आइडल MS धोनी। Yeah, I have to take this 1 year. So I took that 1 year and purchased additional Eco Topper course because I already liked Sankit sir teaching. So that was the reason. So this ऐसे Amazing. हुआ, ऐसे फिर यही So था। then you started and then उसके बाद IIT जैम, फिर IIT गेट में जब रैंक 1 आई तो फिर कैसा लगा? हाँ, मतलब IIT गेट पर एक्चुअली ड्रॉपर्स में एक टेंडेंसी होती है कि ना उनको जल्दी से निपटाना रहता है। मतलब मैंने और भी ड्रॉपर्स से बात की एडी शोर में, उन लोग ने यही कहा, एक बार जब रैंक आ जाता है ना पेपर पे, ना पढ़ने का मन नहीं करता यार, हो गया यार, बस जल्दी से कॉलेज दे दो करके, बहुत हो गया, बहुत घर में बैठ गए, बहुत घर में बैठ के इतना बोर होने लगता है कि अरे यार हो गया बस, अब कॉलेज चाहिए। तो जैसे ही फिर एक पेपर में रैंक आ जाती है वो अच्छी, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरा भी 14 डेज, आई थिंक या 14 डेज मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था यार, हो गया यार कॉलेज मिल गया करके। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिर से यार एक होती है, एक रिमाइंडर मिला कि नहीं नहीं, आई टुक दिस ड्रॉप फॉर ISI, आई Yeah, हैव टू you took a स्टडी। drop, आपने JNU छोड़ा है, which was a very big deal. तो ऐसा फिर तो करना ही था। और मुझे या याद है मैंने आपको कांग्रेचुलेट जब किया था IIT की, आपने कहा था हाँ मैम ठीक है, लेकिन ISI के टाइम ISI चाहिए। हाँ, या तो वो एक रिमाइंडर मिला मुझे, एक्चुअली मेरी मदर से ही मिला कि नहीं नहीं, ISI के लिए ड्रॉप लिया है, ISI चाहिए करके। तो फिर से मैं पढ़ने में लग गया फिर। लेकिन या थोड़ी सी मेरी पढ़ने की आवर्स, स्टडी आवर्स थोड़ी सी रिड्यूस हो गए गेट के बाद, इसलिए शायद रैंक कम आई, 25 आई, मतलब तो और अच्छी रैंक आ सकती थी। लेकिन या सो बिकॉज ऑफ द ड्रॉपर टेंडेंसी, आई थिंक आई गॉट माई रैंक रिड्यूस्ड। लेकिन या आई मैनेज इट वेल। हाँ, इतना पढ़ने के यू आया से थॉट हो कि जाए। एक बार गेट में अच्छी रैंक आ गई तो थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए, या थक या गए या थे कि या था, मतलब एक्चुअली आई बर्नआउट हो वाज गया है, टायर्ड। अभी या मेरे को बस ठीक है, अच्छा या कॉलेज मिल गया है अब ठीक है, थोड़ा सा बिकॉज पिछली बार तो ये भी नहीं मिला था, IIT भी नहीं मिला था पिछली बार हाँ। जैम से, तो अरे हाँ मिल गया है करके, कुछ अच्छा मिल गया है। लेकिन नहीं, फिर अप्रैल में फिर याद है कि नहीं नहीं, आई नीड ISI। हम्म मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर मी नाउ दैट आई हैव टू टेक ISI। दैट्स अमेजिंग। एंड सो आपने कहा जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आपने दिया तो एक कमी रह गई थी कि उतने प्रॉब्लम शायद नहीं सॉल्व कर पाए थे, तो यस ये मैम। वो टिप आप जरूर सबको दोगे कि यू यस हैव मैम। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो या आपने भी 3 से 4 बार किए थे फास्ट ईयर यस पेपर्स? यस मैम, और दिस टाइम आई डिड इट 4 टाइम्स। पिछली बार तो नहीं, मैं पिछली बार सारे प्रॉब्लम्स ही नहीं कर पाया था, 4 टाइम्स तो बात की बात है, सारे हम्म। प्रॉब्लम्स ही नहीं कर पाया था। लेकिन दिस ईयर या 4 टाइम्स वाज अ बेसिक फॉर मी दिस टाइम। ये तो करना ही है, मतलब इसके बिना जाऊंगा जाऊंगा ही नहीं एक पेपर देने। ऑलराइट। एंड पीबी कैसा था आपका? यूजुअली सबका पीबी से थोड़ा सबको डर या लगता या है। या पीबी मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ शेयर करना, यस। बिकॉज मुझे लगता है सबसे बड़ी लेसन, मुझे लगता है जो देख रहे हैं उनको यहीं से मिलेगी। मेरे पीबी जो 2 ईयर का जो टाइम था, एंड इट विल बी अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर मी, माई पीबी, बिकॉज जिस तरीके से वो गया मैं बताता हूँ आपको। ये हुआ क्या था कि फॉर फर्स्ट 1 आवर मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बना था। हाँ। तो या फॉर फर्स्ट 1 आवर मुझसे क्वेश्चन नहीं बना था, मैं आई वॉज डूइंग रफ वर्क ओनली, या हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस। मतलब मुझे भी एक्चुअली शॉक लगा था कि अब व्हाट अ पेपर, नेवर सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो या सो for first 1 hour I kept thinking in the rough page of the answer sheet that how to do this, how to write it well। भले ही गलत हो लेकिन एकदम अच्छे से लिख के आना, कोई गोदागाजी नहीं करनी है, कोई काटा पीटी नहीं करनी। पिछली बार बहुत हो गया था काटा पीटी, मुझे लगता है उसी कांड उन्होंने कॉपी चेक नहीं की होगी लगता है, इतनी काटा पीटी कर दी थी। तो इस बार तो अच्छे से लिखना है, लेकिन और ठीक ठाक आंसर, मतलब अच्छा आंसर देना है।
1 hour आई वाज थिंकिंग कैसे आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या लिखूं, ये वो। तो जैसे 1 hour हुआ, देखा कि हाँ 1 hour हो गया है, तो लिखना मैंने चालू किया। तो आई स्टार्टेड विद जस्ट लाइक सर सेड, स्टार्ट विद ग्रुप ए, देन ग्रुप बी, देन ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के 2 मैथ्स के क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि हाँ बन जाएंगे लास्ट के हाफ आवर में भी। एंड दैट, जो फिर 1 घंटा हुआ उसके बाद मैंने फिर माइक्रो का चालू किया फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसको मैंने कैसे कैसे बना दिया जो मन में आया उस समय। 1 घंटे जो भी एकत्रित किया था, जो भी गैदर किया था, वो सब मैंने डाल दिया उसमें, माइक्रो में और मैक्रो में। एंड आई वॉजेंट वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये सही होगा, लेकिन मैंने वो जितना अच्छा आंसर बन सका 1 hour में, जितना मैंने गैदर कर पाया, जितना रिकलेक्ट कर पाया, सब डाल दिया उसमें। उसका मैंने मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं, मुझे लगता है उसके ज्यादा मार्क्स मिले होंगे। लेकिन जब फिर मैं मैथ्स में आया, सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में आया तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 सेक्शन सी का, वो मैंने जब बनाना चालू किया तो उसके फर्स्ट दो पार्ट बन गए। एंड द थर्ड पार्ट वाज द ट्रिकिएस्ट वन, सी पार्ट। वो ट्रिकिएस्ट, सबसे ट्रिकियर था, और वो वहां मेरे से बन नहीं रहा था, एंड ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। तो मैं बोला यार ये नहीं बनेगा। तो मैंने सर पकड़ लिया, और फिर सोचने लग गया क्या करना है, बन नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो एंड वो सारा 1 ईयर का मेमोरी सारा मेरे मेमोरी में आने लगा, फ्लैशबैक सारे, Oh क्या सोच God. के ड्रॉप लिया था, क्या हो रहा है, बनना चाहिए। और उसके बाद इतनी अंदर से एक वो आई इंटेंट, जितनी भी इंटेंट मैंने लेके ड्रॉप ली थी, वो सारी मन में आ गई कि आई हैव टू डू दिस। ये इसके बिना मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे ऐसा ही चाहिए ही चाहिए। इसके बिना मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। आई हैव टू डू, ये मेरी लाइफ का सवाल है, एकदम लाइफ पे आ गई थी बात की। तो नहीं, मैं सब लोग को बोल रखा है, घर वालों को बोल रखा है कि मैं करके आऊंगा, आई हैव टू डू दिस। मैं कैसे उस, पता नहीं लास्ट के 15 मिनट्स, मुझे पता नहीं ब्रेन में से अचानक से वो आंसर आया, या दिस इज द ट्रिक, दिस इज द वे। मैंने लिख दिया उसका आंसर, वो सही Oh हुआ। wow. या तो मतलब आपको हाँ। आप मतलब आप बोल रहे हो कि आपने अपना माइंडसेट के ऊपर बोला कि मुझे करना ही है, एंड इट आपका साथ दिया, आपकी जो पूरी प्रेपरेशन थी 2 साल की, वो सब मिलके आप यू सेड कि नहीं, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, एंड वो आया आपको आंसर फाइनली। यस मैम, इट यस डिडंट मैम। लेट यू डाउन, इट हैपेंड, एंड दैट हैड टू गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज लाइक यू सेड कि रैंक 25 थी, इट वाजंट कि एकदम हाई थी, तो ऐसे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था टू डू थिंग्स रॉन्ग। सो दैट वाज काइंड ऑफ द डिसाइडिंग मोमेंट कि ये हो गया। तो बिकॉज पीईबी पे स्ट्रेस भी बहुत है, मार्क्स भी बहुत यस है, मैम, आई न्यू दैट। वेटेज बहुत है पीईबी का। सो दैट सीम लाइक कि योर माइंडसेट एंड योर बिलीफ जो आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो, दैट हेल्प्ड यू इन द एंड कि नहीं, करना ही है ये, और ये होगा ही, और ये मुझे करना ही है। That is amazing. That is fantastic, Gaurav. That is a lesson for all of us कि एग्जाम में भी चाहे आप बोलो 1 घंटे तक भी कुछ ना हो, लेकिन बस वो बिलीफ रखना है कि नहीं होगा, करेंगे, एंड समथिंग विल हैपन। So amazing. I think that's a great story. That's very inspirational. Um, and finally फिर आपका नाम आया in the list. Interview था. So then that was the last hurdle left. अब इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू के लिए कैसे माइंडसेट को अपना बनाया? ये इंटरव्यू के लिए एक्चुअली मैं जब पीबी दिया, और मैं तो घर आके एक्चुअली पहले तो थोड़ा सा मैं रो दिया अपने घर वालों के सामने कि यार दैट, मतलब कि एकदम परफेक्ट पेपर, दैट वाजंट अ परफेक्ट पेपर फॉर मी। तो मुझे डाउट था कि होगा कि नहीं। लेकिन मैंने दो दो दिन में बहुत स्ट्रेस में रहा, बहुत एकदम रोने वाला चेहरा था। उसके बाद लेकिन मैंने जब वो रिकलेक्ट किया वो मेमोरी पीबी वाली, तो मुझे बहुत एक्चुअली अंदर से संतुष्टि भी हुई कि आई डिड माई बेस्ट। मैंने जो लास्ट के 15 मिनट जो इंटेंट दिखाए वहां पे, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि ना दिस इंटेंट विल ड्राइव माई लाइफ फॉरवर्ड, मुझे कहीं लाइफ में ले जाएगी इंटेंट कि आई वाओ। हैव टू डू समथिंग। तो थोड़ा सा, हाँ उस टाइम सेटिस्फेक्शन था, कि आई डिड माई बेस्ट, अब इससे अच्छा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वहां जो लाइफ लास्ट के जो 15 मिनट देखे पीबी में, वो मेरे लाइफ के मतलब बहुत ही बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। जो इंटेंट मेरी आई उस समय, जो मेमोरीज मेरी आई या फ्लैशबैक, सो या कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। एंड लास्ट के 5 मिनट्स मेरा पेपर कंप्लीट हुआ, 5 मिनट बचे थे, और मेरा पेपर पूरा मैंने लिख के कंप्लीट किया था। तो जब मैंने रिकलेक्ट चालू किया, एक्चुअली आपको ये 2 दिन 3 दिन बाद समझ आता है, जब आप सोचते हो वापस बैठ के क्या हो सकता है,
तो आपको तब अंदर से एक स्माइल आई कि यार नहीं, आई डिड माई बेस्ट, मुझे आई एम सेटिस्फाइड। सो और मैंने ये सोच लिया कि हाँ नहीं होने वाला है, छोड़ो, लेकिन आई डिड माई बेस्ट, तो सेटिस्फैक्शन भी था कि ठीक है, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं IIT जाऊँ, IGI डियर जाऊँ, आई एम टेकिंग दैट सेटिस्फैक्शन विद मी फॉर लाइफ टाइम, दैट आई डिड माई बेस्ट इन PEB। तो मैं तो सोच लिया था कि हाँ अब तो IGI डियर या फिर IIT ट्राई करना है। मैं मेरे थॉट में था कि अब नहीं होने वाला, छोड़ो करके गया वो, आई लॉस्ट दैट वॉर। तो फिर जैसे इंटरव्यू की लिस्ट आई तो मैं बोल ओके, आई वाज वेरी हैप्पी, वो कैसे हो गया करके, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ, तो उसके बाद तो फिर मैं और स्ट्रेस में आ गया कि अरे यार ये कैसे हो गया, अब इसको कैसे करना है। मैं तो फिर मुझे लगता है संकेत सर को याद भी होगा, मैंने कॉल भी किया था इस स्ट्रेस में, और मैंने आपको भी मैसेज किया था कि आई एम वेरी स्ट्रेस, बहुत डॉन्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। सो इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ाई तो उतनी नहीं की, मैंने कुछ बस रिवीजन किया कि हाँ सब तो आता ही है, फिर से वही वही पढ़ना मेरे लिए बहुत बोरिंग हो गया था कि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैंने फिर से वही वही पढ़ना, अरे यार कितने बार वही पढ़ूँ यार, सब तो आता है, तो उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, और 4 टाइम्स ही कर चुका हूँ, अब ये और रिवाइज कर लिया, एक और बार रिवाइज कर लिया उसको ही, सिर्फ पास्ट पेपर्स को। फिर मैं बोला कि ठीक है, अब होगा जो देखा जाएगा। फिर उसी माइंडसेट से मैं गया। फिर वहाँ जाने तक बहुत स्ट्रेस था, ऐसे जाने तक। एंड जब मैं वहां पे बैठा उस ऑडिटोरियम में, अब मेरा सारा स्ट्रेस चले गया। जब मैं उस ऑडिटोरियम में बैठा, आया था कि मैं सारा स्ट्रेस भूल गया अपना। तो ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं अब सारा स्ट्रेस अपना IISc ऑडिटोरियम में भूल गया। मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई, ऐसा कुछ हुआ होगा कि मैं सारा स्ट्रेस भूल गया कि मैं आया इंटरव्यू देने आया हूँ। आई वॉज एंजॉइंग दैट फीलिंग ऑफ सिटिंग इन IISc। The experience of being called for an interview at ISI. या sitting in the chair of IISc, so yeah, I was enjoying that moment कि Mm. शायद पता नहीं अब 2 साल का कोर्स मिला ना मिला, लेकिन I am enjoying this You moment are here. At this moment, sitting you in are here. IISc, yeah. Yes, yes. So that was it. फिर वहाँ उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो मुझसे आधा बना आधा नहीं बना। उन्होंने हेल्प की, मतलब दे वर वेरी फ्रेंडली। मैं एकदम चौंक गया कि यार इतने फ्रेंडली लोग कैसे हो सकते हैं बिकॉज माय प्रोफेसर इन BHU वर नॉट दैट फ्रेंडली। मैंने 2-3 बार डांट भी खाई वहाँ पे, कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए। वेरी सीरियस पीपल, एंड ये दे आर वेरी फ्रेंडली। आई वाज वेरी सरप्राइज, यार इतने फ्रेंडली प्रोफेसर कहाँ आते हैं। तो या इट वाज अ वेरी, आई एंजॉयड दैट मोमेंट ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रेस में नहीं था। That's nice. That is so nice to hear. जब मैं जब मेरा DSC में हुआ था तो फर्स्ट डे मैं भी आई थिंक मैंने कुछ नहीं सुना प्रोफेसर क्या बोल रहे थे, मैं बस अपने आप को पिंच कर रही थी that okay, I am sitting in the Delhi School of Economics. So yeah, it's a that first time stepping into such a great institution, it is very special. I can understand that. So great, Gaurav, great journey. I think finally coming to an end, and ISI is a great place to be. I mean, it is not only one of the best institutes in the country, but क्योंकि इतने कम students हैं, तो आपका interaction भी इतना special होता है with the teachers, with everyone, and बहुत अच्छा course structure है इनका. It is not even कि बहुत ज़्यादा strenuous है या बहुत ज़्यादा relaxed है. It is good, मतलब सब कुछ बहुत balance में है. So it's a great place also to do your masters. So I think amazing journey, Gaurav. Congratulations थैंक यू मैम। for all the hard work, all the ups downs, everything that you went through. And like I was talking to another person in interview मैंने सुबह किया था, that that satisfaction that I gave my best. I think that is, like you said, कि I'll take that forever, कि मैंने तो अपना best दे दिया, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता था. Think that is the same story with you, कि internal satisfaction था that मैंने किया जो कर सकता था. So I think amazing. So great, congratulations. And anything at the end that you would like to tell your juniors, anybody listening? या सो एक्चुअली मैंने मुझे मुझे बहुत मैसेज आने लगे उसके ISI के बाद कि यार कैसे किया ये, पास्ट पेपर्स करने हैं कि क्या करने हैं। मैं उनकी आई वुड लाइक टू से दैट if you're in English sure, just do what sir and ma'am saying, because they know all of it, क्या करना है। And apart from that, which I can tell you, is that the key to cracking it is, like I said, is the confidence and the belief in yourself. The Yeah. final thing you have to take into the exam hall. Apart from your 4 years, apart from your concepts,
apart from 4 times paper done, these things keeping aside, you have the final thing you have to carry to exam hall is the belief in yourself. Yeah. 100%. वरना आते आते चीजें silly mistakes करके आ जाते हैं. Yeah. Yeah. All right, Gaurav, thank you so much. It was great chatting with you, and all the very best. I'm sure you'll have a great future ahead, and be in touch, and have a great time at ISI. Then one thing, one more thing, that many people believe that this thing is only for DU and St. Xavier students, but I would say not, because I am also the only one from my batch in BHU who cracked ISI. So yeah, even if you are from a not so good university, state university, or some a small Absolutely. private college, you Absolutely. can do this. Just keep believing in yourself. Absolutely, that is so true. Like I said, I had interviewed someone today only. They were the first person from, I think, Rourkela University, the first person ever to make it into ISI. एक पहले मुझे लड़का याद है, पुणे में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है, फर्स्ट पर्सन एवर टू मेक इट इनटू ISI. एंड पहले जेवियर्स का लगता था, बट we've had college students from, शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे उन कॉलेजेस के, बेथून कॉलेज, श्री रामपुर कॉलेज. These are just the most average colleges. Gokhale College of Calcutta University. वहाँ के बच्चों ने किया है. एक लड़की ने किया है, वो BBE की है from Delhi University, non-economics. I think Maulik आपको पता है, he's a BCom student. English Maulik is honors. from my city. Yes, Maulik ने बताया कि आप लोग मिले थे in the exam hall. Yeah. So people from everywhere had made it. Anybody who's willing to work hard. ISI doesn't care about your background. वो बोलता है मुझे तो क्लास 12 में मैथ्स भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, as long as तुम मेरा पेपर अच्छे से दो. Also, people think that ISI is only for early achievers who have achieved so many things at an early age. मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैंने भी कुछ अचीव नहीं किया था, इससे मुझे ISI जाने की इतनी ज्यादा आग थी. I was feeling like I'm not that normal. मैं कुछ कर सकता हूँ. इतनी आज तो कोई खास अचीवमेंट मैंने नहीं की थी, and ISI is the biggest achievement in my life till now. So yeah. अगर आप अर्ली अचीवर नहीं हो, आपने कुछ खास अचीव नहीं किया, still you can do it. Just get serious now and you can do it. Absolutely. I think people should watch your video every day. कि get serious today and अभी से करो, background को भूल जाओ. Yeah. Yes. All right, Gaurav. Thank you so much for all your help, all the tips that you're giving to the juniors. I hope they really watch your video and they take inspiration and वो भी मतलब decide कर ले कि बस मुझे करना है और मैं क्यों नहीं कर सकता. I think instead of thinking कि मैं कैसे कर पाऊंगा, I think it's मैं क्यों नहीं कर सकता. Thank you, ma'am. Thank you, Gaurav. Thank you so much.